Okay. So today's lecture is the coordination polymerization. We have discussed in last classes the free radical polymerization, cationic and anionic. All. Wait for a minute. Okay. So today we are going to start with the coordination polymerization. In last classes we have discussed the free radical mechanism of addition polymerization, cationic mechanism of cationic addition polymerization, and the mechanism of anionic addition polymerization. Next is the coordination polymerization. So why is it called as coordination? Because in this polymerization, see one thing that by the coordination polymerization, stereoregular polymers are prepared. Stereoregular polymers we have discussed in last classes. कौन से हैं? Atactic polymers, symbiotic polymers, and isotactic polymers. So stereoregular polymers means which are classified on the basis of the arrangement of the side groups to the polymer chain. These are called as the stereoregular polymers. तो आइसोटैक्टिक में क्या है, जो साइड ग्रुप्स होंगे वो चेन के क्या है, ऑल द साइड ग्रुप्स आर ऑन सिमिलर ग्रुप्स. अटैक्टिक में द साइड ग्रुप्स विल रिमेन attached in a random arrangement or in a irregular fashion. Symbiotic में alternate, one upside, downside, upside, downside. ठीक है, alternative arrangement of side groups attached to the main carbon backbone. So coordination polymerization, actually it takes place in the presence of organometallic compound as catalyst. Free radical में catalyst कौन से आपके यूज किए थे? Per acids, per oxides, etc., which are capable to produce the free radical after homolytic fission. Cationic में Lewis acids, anionic में bases. These were used as catalyst, but in coordination polymerization, catalyst की तरह कौन से compounds use होंगे? Organometallic compounds are used as catalyst. ये catalyst, इसके लिए जो coordination polymerization के लिए जो catalyst use होता है, that is called as Ziegler-Natta catalyst. What is Ziegler-Natta catalyst? Because there were two chemists, one was Ziegler and another was Natta. They discovered that in the presence of catalyst, which is a combination of transition metal halide like titanium chloride or titanium tetrachloride or titanium trichloride, with an organometallic compound like triethyl aluminium. ये क्या है, इन दोनों का अगर कॉम्बिनेशन ले, किसका किसका कॉम्बिनेशन? ट्रांजिशन मेटल हैलाइड्स विद एन ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, then stereoregular polymer can be prepared. And the combination, ये जो combination किसका है? Organometallic compound and transition metal halide. This combination is termed as Ziegler-Natta catalyst. So you can see the structure of Ziegler-Natta catalyst. क्या लिया हुआ है यहाँ पर? Titanium trichloride and triethyl aluminium. ठीक है, ट्राईइथाइल एल्यूमिनियम. और अब यहाँ पर देखिए कैसे ये एक कैटलिस्ट बन जाता है. यू नो दैट द ट्रांजिशन मेटल्स मींस मेटल्स which belong to the D or F block elements, D or F block of the periodic table. D and F block elements form the
कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद द लिगेंड। कैसे बनाते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड? कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे, यहाँ पे कैसे देखिए, एल्युमिनियम और क्लोराइड और टाइटेनियम और इथाइल के बीच में देयर इज अ बॉन्ड फॉर्मेशन बिकॉज मेटल्स हैव वेकेंट डी ऑर्बिटल, और डी ऑर्बिटल वेकेंट होने की वजह से दे हैव टेंडेंसी और कैपेसिटी टू accommodate the electron pair given by the ligand। तो ये कैटलिस्ट बन गया। अब ये कैटलिस्ट वर्क कैसे करता है? सबसे पहले इनिशिएशन स्टेप, this reaction coordination polymerization mechanism also involves the 3 steps. One is the initiation, propagation and termination, as like the addition polymerization. So come to the, when we discuss the mechanism, so in the formation of a, सबसे पहले क्या होगा, in the initiation step there will be formation of a monomer catalyst complex, as previously we have seen in last 3 mechanism. In initiation step there is a formation, means there is an attack of catalyst over the monomer and it activates the monomer species. In initiation first step there is a generation of active species, then this active species attack to the monomer reactant molecule, one of the monomer reactant molecule, and it activates the monomer species. By this way initiation step starts. In coordination polymerization what happens, that there is a coordination bond is involved between a carbon atom of monomer and a metal atom of the catalyst. Catalyst का metal atom कौन सा है? Aluminium and titanium. See, this is the example. तो कार्बन और जो आपका कार्बन किसका, मोनोमर मॉलिक्यूल का कार्बन एटम और कैटलिस्ट का मेटल, देयर इज अ बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन टू। क्योंकि देखिए जब ये वाइनिल मोनोवाइनिल पॉलीमराइजेशन है, वाइनिल पॉलीमराइजेशन में सपोज एग्जांपल इज गिवन हियर इन द इनिशिएशन स्टेप दैट CH2 डबल बॉन्ड CHX, ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड CHX, बॉन्ड ब्रेक, डबल कौन सा होगा, डबल बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाएंगे, तो कार्बन पे क्या हो गया, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। नाउ दिस कार्बन ये अपना इलेक्ट्रॉन किसको देगा, मेटल को। सो देयर इज अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन द कार्बन ऑफ द मोनोमर एंड मेटल ऑफ द कैटलिस्ट। That's why it is called as the coordination polymerization। ठीक है, तो स्टीरियो रेगुलर पॉलीमर फॉर्मेशन का जो पॉलीमराइजेशन मेथड है, दिस मेथड इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एटम ऑफ मोनोमर एंड मेटल एटम ऑफ द कैटलिस्ट। And this coordinated metal carbon bond formed in the monomer catalyst complex, this bond acts as an active center from where the propagation starts। ठीक है, so come to the initiation step। देखिए Ziegler-Natta catalyst, I want to show you one more। Here you can see the Ziegler-Natta catalyst. Screen is visible na beta? Yes, ma'am. ठीक है, तो what are the Ziegler-Natta catalyst? देखिए one another feature of coordination polymerization is that the depending on the polarity of the metal carbon bond and on that of the solvent medium, the metal counterion is placed in a particular spatial arrangement with respect to the anion। metal पे कैसा charge है, positive charge है। you can see the mechanism, you see the diagram here, ये देखिए
कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन में कैटलिस्ट मोनोमर कॉम्प्लेक्स क्या होता है, इज ए हेटेरोजीनियस सिस्टम. हेटेरोजीनियस का मतलब दे बोथ एग्जिस्ट इन अ डिफरेंट फेज with the metal ion in the solid phase and the carbon ion of alkyl group in the solvent phase. ठीक है. कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन में क्या है, जो मेटल कॉम्प्लेक्स कैटलिस्ट मोनोमर कॉम्प्लेक्स जो होता है हेटेरोजीनियस सिस्टम होता है, क्योंकि मेटल जो है वो आपका क्या है, सॉलिड फेज में एग्जिस्ट होता है. और यहाँ पर होता है क्या, कार्बन. मेटल देखिए तभी अटैक करेगा जब कार्बन आयन बनेगा. मेटल कहाँ पर अटैक करेगा, कार्बन आयन सेंटर पे. और कार्बन आयन कैसे फॉर्म होगा, जब डबल बॉन्ड आपका बाय द डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन ओवर द वाइनल ग्रुप, डबल कार्बन आयन एक्टिव सेंटर, क्योंकि मेटल क्या है आपका पॉजिटिव चार्ज है और कार्बन क्या है आपका नेगेटिव चार्ज है. तो यहाँ पे मोनोमर किस में है आपका, सॉल्वेंट फेज में है, और मेटल आपका किस में है, सॉलिड फेज में. तो दिस इज ए हेटेरोजेनस सिस्टम and you can see in the diagram that monomer is inserted in between the metal ion and the carbon ion, which with the result that the polymer chain formed is pushed out from the solid catalyst surface. For this reason coordination polymerization is also known as insertion polymerization. देखिए जो आपका मेटल कैटलिस्ट है वो एक पोलर मॉलिक्यूल है, ठीक है. अब जो मोनोमर इनिशिएशन होगा वो क्या होगा आपका, ये कहां से स्टार्ट होगा, चेन जो इंसर्ट होगी, मोनोमर इंसर्ट होगा वो कहां होगा, सेंटर पे. एक तरफ मेटल है, एक तरफ क्या है, एल्काइल ग्रुप है. तो यहां पर अब इस मेटल के से, ये जो मेटल है इसके साथ क्या हो गया आपका, मोनोमर जो है वो अटैच हो गया. एक मोनोमर और दूसरे साइड पे क्या चला गया, CH2R ग्रुप चला गया. किसका, मेटल कैटलिस्ट का. अब फिर एवरी टाइम इसी मेटल पर ही आके क्या हो जाएगा, मोनोमर जो है वो आपका अटैच होता जाएगा. तो यू कैन सी द चेन ग्रोथ कहां से हो रही है, इंसर्ट हो रही चेन पॉली मोनोमर कहां पर इंसर्ट हो रहा है, बिटवीन द मेटल आयन एंड द कार्बन आयन. कार्बन आयन किसका, जो मेटल में एल्काइल ग्रुप है, ठीक है. तो ये इसीलिए इट इज कॉल्ड एज इंसर्शन. अब अभी तक आपने जो देखा था कैटायनिक एनायनिक किया, इसमें या तो टुवर्ड्स दी मतलब एक्टिव सेंटर कहां पर था, टुवर्ड्स द ग्रोथ ऑफ द पॉलीमर चेन एक्टिव सेंटर की तरफ ग्रो कर रही थी, या फिर एक्टिव सेंटर से अवे फ्रॉम द एक्टिव सेंटर जो है उसके अपोजिट डायरेक्शन में ग्रो कर रही थी. लेकिन यहाँ पर क्या है, जो आपका कैटलिस्ट है उसके सेंटर से क्या होगा, इंसर्ट हो जाएगी. दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड एज इंसर्शन पॉलीमराइजेशन. और ये डिपेंड किस पे करता है, देखिए एक इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन दैट इज दैट डिपेंड्स ऑन डिपेंडिंग ऑन द पोलैरिटी ऑफ द मेटल कार्बन बॉन्ड एंड ऑन दैट ऑफ द सॉल्वेंट मीडियम. The metal counter ion is placed in a particular spatial arrangement with respect to the anion. मेटल और कार्बन बॉन्ड की पोलैरिटी क्या है, उस पे क्या करेगा, जो काउंटर आयन प्लेस है उसका स्पेशल अरेंजमेंट डिपेंड करेगा. तभी तो आपके अटैक्टिक, आइसोटैक्टिक और सिम्बियोटैक्टिक पॉलीमर फॉर्म हो जाते हैं. And the specific spatial arrangement of the monomeric unit inserted into the growing chain imparts stereo regularity to the polymer formed. By choosing a proper catalyst or solvent system, the coordination mechanism can be used to formulate highly stereoregular polymer. अगर किसके सिलेक्शन से, प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ दी और प्रॉपर चॉइस ऑफ द कैटलिस्ट सॉल्वेंट सिस्टम. क्योंकि पहले क्या हो रहा है, कैटलिस्ट और सॉल्वेंट के बीच में पोलैरिटी इंड्यूस हो रही है. सॉल्वेंट इज ऑर्गेनिक मीडियम, कैटलिस्ट में आपका मेटल है, पोलैरिटी डेवलप होगी, उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ओरिएंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल. और फिर उसके बाद जो है आपका जो है मोनोमर जो है वो इंसर्ट होगा. तो अगर प्रॉपर चूज कर लिया जाए कैटलिस्ट और सॉल्वेंट सिस्टम को, तो जो कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म है ये हाईली स्टीरियो रेगुलर पॉलीमर्स फॉर्मेशन के लिए यूज हो सकती है. एंड
catalysts which are used for this, I have told you these are the Ziegler-Natta catalyst. ठीक है, Ziegler-Natta catalyst क्या है? Ziegler-Natta catalyst are the combination of transition metal halide with an organometallic compounds. Excuse me, मैम. हाँ बेटा. मैम स्लाइड जो है मैम वो आगे नहीं बढ़ रही है मैम. क्या हुआ बेटा? मैम प्रेजेंटेशन फ्रीज हो रखी है मैम. 11 नंबर स्लाइड से आगे नहीं बढ़ रही मैम. 11 स्लाइड से आगे नहीं बढ़ रही है? नो मैम. अच्छा, चेन पॉलीमराइजेशन शेयर नहीं हो रहा है? नो मैम. अब हो रहा है? अब हुआ मैम. यस मैम. अच्छा, ये देखो, ये आपने ये डायग्राम दिखाई पड़ा आपको? यस मैम. है ना, ये मेटल हैलाइड है और उसके बीच में मोनोमर क्या हो रहा है? मेटल साइड पे क्या हो रहा है? मोनोमर इंसर्ट होता जा रहा है. M2 मोनोमर ये चेन ग्रो कर रही है. M2 भी कहां पर? मेटल पे इंसर्ट होगा. क्योंकि देखिए ये जो मेटल है, मेटल पे ये MCH2R, ये आपका क्या है? MCH2R ये आपका क्या है? आपका कैटलिस्ट है. ये मेटल पे पॉजिटिव चार्ज, ये एनायन. तो अब ये आपका ग्रो कहां से होगी चेन? CH2 डबल बॉन्ड CHR. ठीक है, तो जो मेटल पे अटैक होगा, मेटल किस या मोनोमर किस पे इंसर्ट हो जाएगा? मेटल साइड पे. तो CH2 इधर, CH2 इसके साथ किसके साथ आ जाएगा? मेटल के साथ. CH2X, CH2R. ठीक है, फिर सेकेंड मोनोमर, फिर यहाँ पर CH2CHX. ठीक है, इस तरह से जो ये आपका जो दूसरा वाला हम अभी आपको शेयर कर रहे हैं उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे. यहां से आपको बेटा ये समझ में आ रहा है कि कैसे जो है मोनोमर इंसर्ट हो रहा है मेटल पे. ड्यू टू दिस पोलैरिटी इंड्यूस, जो मेटल कैटलिस्ट है उस पे पोलैरिटी इंड्यूस होने की वजह से जो है ये आपका मेटल जो आपका जो मोनोमर स्पीशीज है वो जहां पर मेटल है वहीं पर इंसर्ट होगा. ठीक है, दिख रहा है डायग्राम? यस मैम. यस मैम. So Ziegler-Natta catalyst हो गया. You can see इधर the Ziegler-Natta catalyst. You can see the polarity दिख रही है, टाइटेनियम और R. इस तरह से टाइटेनियम Cl3 एक तरफ हो गया, ये R ग्रुप जो है ब्रैकेट में है ना, ये अलग हो गया. इस पे नेगेटिव चार्ज और मेटल पे क्या हो गया? पॉजिटिव चार्ज. कैन यू सी हियर बेटा? इज इट विजिबल? यस मैम. यस मैम. विजिबल है ना? देखो ये क्या है? आपका AlR3 ग्रुप है ना, टेट्राइथाइल एल्युमिनियम सपोज. दिस इज टाइटेनियम ट्राइक्लोराइड. अब ये क्या है? जब ये ब्रेक होगा तो एल्युमिनियम पे क्या है? आपका पॉजिटिव चार्ज है और एक क्लोरीन इसका इधर चला गया तो एल्युमिनियम पे क्या आ गया? नेगेटिव चार्ज. तो ये आपका कौन सा ग्रुप है? ये पोलैरिटी इंड्यूस हो गई. अब जो मेटल इंसर्ट, जो मोनोमर इंसर्ट होगा वो कहाँ इंसर्ट होगा? इस टाइटेनियम पे. ठीक है, you can see in this diagram टाइटेनियम ये और ये मोनोमर इंसर्शन कहां पर होगा? टाइटेनियम से. CH2 डबल बॉन्ड CH. CH2 डबल बॉन्ड CH3. ये आपका जो ग्रुप क्या है? सपोज दिस इज द प्रोपीन. CH2 डबल बॉन्ड CH3 हो गया. R तो लगा ही हुआ था पहले से. टाइटेनियम के साथ क्या अटैच हुआ? CH2 डबल बॉन्ड CH3 था. तो जब डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ तो क्या हो गया? CH2 CH3. अब दूसरा मोनोमर आएगा, फिर कहां पर अटैच हो जाएगा? इसी पे, टाइटेनियम पे. CH2 CH3 CH2 CH3. आप ये CH3 ग्रुप देख रहे हो ऊपर वाले, ये कहां पर आ रहे हैं? एक साइड पर. समझ में आ रहा है बेटा आपको? यस मैम. अगर यही सीक्वेंस रिपीट करें तो हर बार मोनोमर स्पीशीज कहां से अटैच हो रही है? मेटल से अटैच हो रही है. तो CH2CH, दिस इज, आपको कर्सर दिख रहा है? आर यू एबल टू सी द कर्सर ऑफ सिस्टम? नहीं. यस मैम. दिख रहा है कर्सर? यस मैम, विजिबल है. ओके, तो ये CH2 CH CH3 दिस इज वन यूनिट है ना, और एक मोनोमर यूनिट आपका क्या है? CH2 CH2
CH2 डबल बॉन्ड CH3 प्रोटीन, एक मोनोमर ये गया, दूसरा मोनोमर कहां से अटैच हुआ, फिर इसी टाइटेनियम से, बिकॉज इट इज हैविंग अ पॉजिटिव चार्ज, तो ये CH2 डबल बॉन्ड CH3 पे इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर हुआ, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज, तो ये नेगेटिव किसी मेटल से अटैच हो गया और ये कार्बन आयन किसके साथ चला गया, CH2 के साथ चला गया, सॉरी ये कार्बन आयन टाइटेनियम के साथ पॉजिटिव चार्ज और ये इसके साथ। अब जो थर्ड मोनोमर जब आएगा तो एक्टिव सेंटर हमारा क्या है, this carbon is having negative charge and this metal is having positive charge, तो एक्टिव सेंटर जो हमारा आएगा ये क्या है, एक्टिव सेंटर ये when the another molecule M3 molecule of CH2 double bond CH3 group will come in close proximity to this titanium, again CH2 will join from this, CH2 यहां से ज्वाइन होगा तो क्या हो जाएगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, तो if this all CH3 groups एक ही साइड पर है, चेन ग्रो कर रही है, चेन यहां से ग्रो करेगी कंटिन्यूअसली, ऑल दिस CH3 ग्रुप ऑन वन साइड, देन इट इज द आइसोटैक्टिक पॉलीमर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. है ना? और अगर ये आपके रिवर्स होते जाते हैं, रैंडमली अरेंजमेंट होता जाता है, तो आपका क्या हो जाता है, अटैक्टिक पॉलीमर, और अगर अल्टरनेट फैशन में चलेंगे देन इट इज ये सी द मैकेनिज्म हियर, द एक्टिव सेंटर CH2 डबल बॉन्ड CHX, इनिशिएशन स्टेप में मेटल किसके पास आया, इस CH2 के साथ, क्योंकि ये CH2 कहां पर आएगा, इस मेटल पे, ये पोलैरिटी विल डेवलप, इट विल हैव अ पॉजिटिव चार्ज एंड दिस R will have a negative charge, so this CH2 will come to this metal and MCH2 CHX R जो है वो कार्बन, इस कार्बन के साथ अटैच हो गया, दिस इज इनिशिएशन। In propagation step, second molecule of monomer will attach to this metal and by this way chain will propagate. Now the termination, अब बात आती है टर्मिनेशन की। देखिए यहाँ पर क्या है, जितने एक्स है वो सब एक साइड पर है, जब ये एक सारे एक साइड पर होंगे देन दिस इज द आइसोटैक्टिक, जब ये एक्स रिवर्स हो जाएंगे तब क्या होगा आपका, अल्टरनेट की एक्स ऊपर है, कभी एक्स ये नीचे है, कभी ऊपर है कभी नीचे, देन इट इज द अटैक्टिक पॉलीमर, और जब एक एक्स ऊपर दूसरा नीचे दूसरा ऊपर नीचे अल्टरनेट अरेंजमेंट, देन इट इज अ सिम्बियोटैक्टिक पॉलीमर। अब देखिए termination is possible by two ways. पहला तो termination by an active hydrogen compound, किससे, एक्टिव हाइड्रोजन कहां से आएगा, बाय द सॉल्वेंट, जैसे आपको बताए थे क्या, जो इनिबिटर्स होते हैं थायोएल्कोहल्स, एल्कोहल्स, है ना, तो ये इनिबिटर जो इजीली प्रोटॉन दे सकते हैं, हाइड्रोक्विनोन्स, तो ये RH R.H, दिस इज ए सॉल्वेंट, यहाँ ये क्या करेगा, ये सॉल्वेंट जो है वो अपना H जो है वो डोनेट कर देगा, तो जब ये H डोनेट करेगा तो क्या हो जाएगा, H कहां पर जाएगा, ये कहीं दिख रहा है आपको, ये मेटल जो है H किधर आएगा, जहां पर ये आपका चेन मेटल के साथ स्टार्ट होता है, क्योंकि मेटल पे पॉजिटिव चार्ज है और इस कार्बन पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है। जो CH2 है आपका ये इस तरीके से देखिए, आपका जो है वो डबल बॉन्ड पे डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे क्या होगा, इस पे जो है यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, मेटल पे पॉजिटिव चार्ज है, तो H कहां पर, H विल अटैच टू दी दिस, ये किसमें ब्रेक होगा, R माइनस H प्लस, या R रेडिकल H प्लस आयन, तो ये जो है H ion will attach to this CH2 and will form the CH3 CHX because chain is propagating from this carbon, तो टर्मिनेशन कहाँ होगा, इसी कार्बन से, और इस ये जो मेटल है वो किसके साथ अटैच हो जाएगा, will form a bond with this R group, तो ये क्या हो गया, मेटल मेटल किसके साथ, R ग्रुप के साथ अटैच हो गया, तो ये आपका स्टॉप हो गया, टर्मिनेशन जो है वो कहाँ, ये जो ग्रोइंग चेन थी इट विल टर्मिनेट, तो जो मेटल है वो अटैच नहीं रहेगा, जो अल्काइल ग्रुप है दैट विल रिमेन अटैच्ड टू द पॉलीमर कंपाउंड। और सेकेंड मेथड ऑफ टर्मिनेशन इज द टर्मिनेशन बाय ट्रांसफर विद मोनोमर,
मोनोमर से कैसे ट्रांसफर होगा? मोनोमर आपका क्या है? CH2 डबल बॉन्ड CHX. दिस इज द मोनोमर यूनिट. ठीक है, तो ग्रोइंग चेन, जो ग्रोइंग चेन है जैसे CH2CS, तो ये हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन जो है वो एब्स्ट्रैक्शन किस पे होगा? मोनोमर पे. चेन जो हमारी ग्रो कर रही थी वो ट्रांसफर हो जाएगी किस पे? दूसरे मोनोमर पे ट्रांसफर हो जाएगी. मोनोमर स्पीशीज जैसे यहाँ पर आई, ये हाइड्रोजन CH2CH ये हाइड्रोजन जो है वो कहाँ ट्रांसफर हो गया? इस पे ट्रांसफर हो गया. तो ये क्या बन गया? MCH2CH2X. और ये क्या हो गया? ये डबल बॉन्ड. तो इससे अनसैचुरेटेड जो है वो पॉलीमर विल बी CH2 डबल बॉन्ड CX. इसका जो है वो हाइड्रोजन कहाँ हो गया? इधर एब्स्ट्रैक्शन. हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन बाय द मोनोमर फ्रॉम द प्रोपोगेटिंग chain. Third method is the spontaneous internal transfer. Spontaneous internal transfer में क्या है? You can see here कि जो मेटल है वो इसी ग्रोइंग चेन में से हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट कर लेगा. ये हाइड्रोजन जो है ये क्या हो जाएगा? इस मेटल के पास. हाइड्रोजन आयन डोनेशन बाय दिस पॉलीमर. ये जो ग्रोइंग चेन है इसी में से हाइड्रोजन विल बी एब्स्ट्रैक्ट बाय द मेटल. तो जैसे ही इसमें से हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन होगा तो क्या होगा? मेटल जो है वो दिस पॉलीमर किस में हो जाएगा? CH2 डबल बॉन्ड C में कन्वर्ट हो जाएगा और ये हाइड्रोजन के साथ जो है वो बॉन्ड बना लेगा. ठीक है, जो मेटल है यहाँ पर M मेटल डिनोट द ट्रांजिशन मेटल सच एज टाइटेनियम, मोलिब्डेनम, क्रोमियम, वेनेडियम, निकेल और रोडियम एटसेट्रा. नाउ कम टू द advantages of coordination polymerization. Are you able to see the advantages of coordination polymerization? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So coordination polymerization is basically used to prepare the stereospecific polypropylene, polydienes, polypropylene. देखिए इससे जो है by the coordination by the Ziegler-Natta catalyst or the coordination polymerization by this mechanism, nearly 90% isotactic polymer of polypropylene can be prepared. 100% तो देखो बेटा पॉसिबल नहीं होता है, बट मैक्सिमम जो है वो कौन सा? पॉलीप्रोपाइलिन का आइसोटैक्टिक. आइसोटैक्टिक कौन सा होगा? जिसमें all the side groups are on the same side of the growing polymer backbone. Can be prepared. But actually the exact mechanism of coordination polymerization is still unclear. Now, what are the advantages of coordination polymerization? This is the method which can produce the stereoregular polymers. And stereoregularity is important in determining the properties of the polymer. Like stereoregular isotactic polypropylene exhibit the better mechanical properties over a wide range of temperature. Normal propylene, polypropylene and isotactic polypropylene. Isotactic polypropylene जो है इसकी जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, it is stable over a wide range of temperatures. Next is the stereoregular control of coordination polymerization process produce the polymers which have fewer branches and therefore could be obtained in a higher degree of crystallinity. Crystalline polymers and amorphous polymers. देखिए, what is difference between crystalline and amorphous? Amorphous means the random arrangement of molecules in space, and crystallinity means the presence of long range order. Long range order means the well-defined arrangement of molecules in a 3D space. तो जितना orderly arrange होगा, it possesses a higher degree of crystallinity. तो
क्रिस्टलाइन पॉलीमर फॉर्मेशन के लिए स्टीरियो रेगुलर, ये जो कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन प्रोसेस इज द बेस्ट टू प्रोड्यूस द हाई डिग्री ऑफ क्रिस्टलिनिटी पॉलीमर. For example, the high density polyethylene produced by the coordination polymer has high degree of crystallinity as compared to the produced by other method. देखिए अभी जब आप आगे पढ़ेंगे देन यू विल सी दैट पॉलीइथाइलिन जो है वो दो टाइप का होता है, एक हाई डेंसिटी होता है, एक लो डेंसिटी होता है ना. तो हाई डेंसिटी पॉलीइथाइलिन को अगर कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन से प्रोड्यूस किया जाए तो इट possesses the higher degree of crystallinity. This polymer will be more crystalline. More crystallinity means more strong. क्योंकि क्रिस्टलाइन नेचर में क्या होता है, वेल डिफाइंड अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल, सो द बॉन्ड्स आर स्ट्रॉन्ग एंड मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड्स. And this is because the polyethylene having less branching pack more efficiently resulting in high degree of crystallinity. जितना वेल डिफाइंड अरेंजमेंट होगा उतना ही क्रिस्टलाइन नेचर होगा. So this is all about the coordination polymerization. Next is the condensation polymerization. Condensation polymerization किसमें होता है, कौन से मॉलिक्यूल्स हैं, मोनोमर्स हैं जो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन एग्जिस्ट करते हैं, जो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन को प्रमोट, मतलब विच आर फॉर्म थ्रू द कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन. तो वन इज द नेसेसरी कंडीशंस दैट मोनोमर्स should contain two or more reactive functional groups. Two different monomers when combined together having two or more than two functional groups, when they combine they form a species by the liberation of a small molecule like water, HCl, etc. You can see here the example of the nylon 6,6, which is prepared by the adipic acid and hexamethylene diamine. Adipic acid has two carboxylic groups and hexamethylene diamine also has two amine groups. When these two react, क्या हो रहा है यहाँ पर, CONH means liberation of water molecule कहाँ से हो रहा है, H from amine and OH minus और H plus. ये यहाँ से water molecule liberate हो गया and this bond is called CONH. When I show this, यहाँ पर H single bond N के ऊपर H लगाते हैं, तो this ये आपका क्या हो गया, इस बॉन्ड को क्या बोलते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड, जो प्रोटीन्स में होता है, अमीनो एसिड्स में होता है ना, CONH, दिस इज द पेप्टाइड बॉन्ड इसको बोलते हैं. सो एक वाटर मॉलिक्यूल कहां से निकला, जब ये दो रिएक्ट किए, ठीक है, दो मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहे हैं N और M, 2N-1, जितने रिएक्ट करेंगे उससे एक कम जो निकलेगा वाटर मॉलिक्यूल. सो दिस इज द रिपीटिंग यूनिट. रिपीटिंग यूनिट क्या है, ये आपका रिपीटिंग यूनिट है. अब दूसरा रिपीटिंग यूनिट कैसे बनेगा, व्हेन अगेन देयर इज अ रिएक्शन बिटवीन एडिपिक एसिड एंड हेक्सामेथिल डाइमीन, देन अनदर मॉलिक्यूल ऑफ दिस रिपीटिंग यूनिट विल फॉर्म. जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे देन द चेन विल प्रोपोगेट. अब कैसे, एक मॉलिक्यूल ये है, दूसरा सेम मॉलिक्यूल विल कम टू कॉन्टेक्ट, तो ये H और दूसरे का OH ये निकल जाएगा. अगेन देयर इज अ लिबरेशन ऑफ वन वाटर मॉलिक्यूल, देन these two species will combine. समझ में आ रहा है बेटा कैसे एडिशन होगा, कैसे जुड़ेंगे ये? Yes, ma'am. Yes, ma'am. है ना, समझ में आया. एक तो रिपीटिंग यूनिट ये बना आपका, ये यहाँ तो ये N लिखा है, लेकिन फर्स्ट केस में जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे देन इट विल कंसीडर्ड एज वन. दूसरा यही मॉलिक्यूल जब विल कम टू द, तो ये रिवर्स उल्टा हो जाएगा. तो OH एक मॉलिक्यूल का H और दूसरे का क्या है OH,
ये दोनों मिलके फिर एक वाटर निकालेंगे, देन क्या हो गया है, NH के बाद क्या हो जाएगा, CO, NH again CO. If by this way the polymer will propagate. So this is called the condensation polymerization. So it is seen from the above reaction that the polymer formed still contains both the reactive functional groups. तो ये क्या है, इट इज एक्टिव नॉट डेड पॉलीमर, ये क्या है आपका एक्टिव पॉलीमर है, क्योंकि अभी भी दोनों साइड पर इसमें क्या है, जैसे जैसे इधर से चेन ग्रो करती जाएगी तो ये जैसे ही चेन ग्रो होगी तो लेफ्ट और राइट साइड दोनों पे क्या है, फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एक्टिव पॉलीमर. Or in this example you can see that reactive the molecule contains two different reactive functional group, NH2 and COH. There are some polymers formed in which or in some cases both the reactive groups may be present on the same monomer. यहाँ पर एक पर OH है, एक पर NH2 है, COH NH2 OH, और आपके क्या है ये, these are different functional group at different molecules, but there are some molecules in which both or different functional groups are present in the same monomer, and this lead to self-condensation reaction. You can see in this molecule NH2 CH26 COH, amino acid. तो यहाँ पर क्या होगा, OH इधर से NH2 से H, इसी एक मॉलिक्यूल में से दोनों आपके फंक्शन ग्रुप जो होंगे वो निकल जाएंगे एंड चेन विल स्टार्ट टू ग्रो. दूसरा मॉलिक्यूल जब आएगा तो क्या होगा, इसके H के यहाँ से निकलेगा H, अगेन क्या हो जाएगा, NCO NHCO बॉन्ड फॉर्मेशन. तो दिस इज कॉल्ड द सेल्फ कंडेंसेशन. इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड द सेल्फ कंडेंसेशन रिएक्शन. जब different functional groups are present in same molecule, it is referred as or termed as the self condensation. Some other examples like the polycondensation of dihydric alcohols and dicarboxylic acid, which leads to the formation of the polyesters. So dihydric alcohol and dicarboxylic acid, OH, H from this carboxylic and OH from this alcohol, water. The formation of CO, ROH, CO, R से OH ग्रुप जुड़ेगा, COH से आपका H, यहाँ से H निकलेगा और R से OH निकलेगा. तो by this way chain will propagate. Second example is the polycondensation of dicarboxylic acid and diamines to give polyamides. Dicarboxylic acid and diamine. Again, H from NH2 and OH from C. N number का मतलब क्या है? N is representing the N number of repeating units. N number of कौन सी? ये यूनिट आपका रिपीट हो रहा है. ये यूनिट कैसे बन रहा है? COR, CONH, R, NH2. This is the repeating unit which is produced by the reaction between the dicarboxylic acid and diamine. Diamine and dicarboxylic acid when react they give a repeating unit, and this repeating unit will continue to repeat. यानी कि chain growth और H और OH जो है वो side में, these are the functional group. After every addition of this reactive species, there will be liberation of H and OH. So 2N-1 molecule, water molecule will liberate or release after the reaction. Here are some more examples of the condensation reaction, like the polycondensation of dihydric alcohols and methyl esters to form the polyesters, self condensation of omega hydrogen acids to yield polyesters. ये हम लोग लास्ट में जब commercially important polymers पढ़ेंगे, then we'll study the whole synthesis of these. These are some only the examples of the self condensation and the polycondensation of some condensation reactions. Now come to the chain growth and step growth polymerization.
पहले भी हम लोग क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, चेन ग्रोथ एंड स्टेप ग्रोथ। दोनों का काइनेटिक्स जो होगा दैट विल बी डिफरेंट। अभी नेक्स्ट क्लास में लोग विल स्टडी द रिएक्शन काइनेटिक्स, सो दैट विल बी डिफरेंट। So in chain growth polymerization, addition polymerization's mechanism is followed by the chain growth. देखिए चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन में क्या होता है, जो हाई मॉलिक्यूलर वेट पॉलीमर होता है, इट इज फॉर्म्ड अर्ली ड्यूरिंग द पॉलीमराइजेशन and polymer yield gradually increases with time. As the time increases, the reaction time of reaction increases, the yield of polymer increases. Chain growth polymerization required the presence of an initiating molecule that is used to activate the monomer molecule at the start of the polymerization reaction. So most of the addition polymers are chain growth polymers, because in chain growth polymerization reaction cannot initiate without adding the initiator, as in case of the addition polymerization. In step growth polymerization, high molecular weight polymer is formed only near the end of the polymerization rate, and most of the condensation polymers are the step growth polymerization, with some exceptions. There are some condensation polymers which are not formed by the step growth polymerization. There are some exceptions are also exist. In step growth polymerization, the reaction takes place in stepwise manner, and polymer buildup is slow. क्योंकि पहले दो reactive species combine करेंगे, then formation of repeating unit in step growth polymerization. So in chain growth polymerization, the polymer buildup is very fast, whereas in step growth polymerization, the polymer buildup is slow. So these are some, this is about the chain growth and step growth polymerization, and the next topic is the copolymerization. So in next class, we'll start with the copolymerization. बेटा समझ में आ गया आप लोगों को? Yes, ma'am. So this is over for today. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Okay.